So show me, what is the error. Share your screen. Give control to me. I'll solve that error. Uh, Okay, sir. just a quick recap. What we are learning here. We are trying to transfer the data from our parent component to child component. That's the thing which we are learning. Already we know how to identify the parent and child. Okay, and if you are transferring from parent to child, I told that it is little easier. The important thing is you have to use at the rate input decorator. Okay, so what you have to do in your parent class, first you have to declare the property. I told you make that as public. So we have taken this as a parent data, correct? And I'm not Yes. sharing my screen. I'm just letting you telling you, and then decide those value, assign those value, and then in another go to parent component only, and look into the selector which you are using for your child. There you declared one win property, and I'm telling you the property binding in a square bracket. Okay, use the same method, same variable which you have declared. So we have declared the banner. Okay, and then try to use the same thing in your child components. It's as simple as that. With the rate with the at the rate input decorator. Okay, so if this concept is clear, then share your screen. I'll see what is the issue. Okay, sir. You are using your mobile or you are using your laptop? लैपटॉप सर. Oh, then it's okay. सर डिसेबल किए हैं आप शेयरिंग. Okay, 1 second. Share screen. Multiple participants. Yeah, you can share now. Yes. You can share your screen now. Hmm. Okay, so you are getting this error. Yes, sir. So don't use this child event. No, this don't use. Don't use this. Delete Yes. this child event. Delete this child event and that message event also. Okay, parallelly you are typing also, huh? Yes, sir. Very smart. So parent data is banner. Okay, so perfect. So can you give me the control? Is there any way you can give me the control? हो सर हो गया. Okay. Now show me your output. So वन सर एक मिनट. saying compiled successful. Automatically, every time, no need to run the npm start. You just save your application. Automatically, it will build, bundle, and deploy. So let's switch on your videos, Salis. I want to see your pretty Yes, sir. face. सर आ गया ये बैनर यार. मेंटरशिप प्रोग्राम 2020.
So now you understand how you can bind it, correct? So is this clear, everybody? How to bind from a parent control to a child control? How you can do the binding in Angular components? Yes, sir. So Hello, sir. yeah, Sanskriti, is it working for you also? कह रहे थे हम कि डेटा बाइंडिंग हम कंपोनेंट को वो बाइंड करने के लिए करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, राइट लेकिन राइट। सर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब दो तरीके के नहीं, आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, करेक्ट? अगर आपको एक कंपोनेंट में कोई डेटा है और उसको दूसरे कंपोनेंट में दिखाना है, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? आप चाहती हो कि मेरा ये डेटा, जैसे एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है और एक स्टूडेंट डिटेल इंफॉर्मेशन है। सो अगर आप उसको डिजाइन करोगे, एक स्टूडेंट बनाया आपने और फिर एक उसका स्टूडेंट डिटेल बनाया, तो आपको दो कंपोनेंट बनाने होंगे। तो स्टूडेंट में आप स्टूडेंट आईडी, सपोज आपने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया, उसमें आप रेस्ट पॉइंट को कॉल करोगे और स्टूडेंट डेटा को लेकर के आओगे। जब डेटा आपके पास आ गया है, वो स्टूडेंट कंपोनेंट में है, लेकिन उसको आपको दिखाना स्टूडेंट डिटेल कंपोनेंट में है। तो वो डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाएगा कैसे, इसके लिए बाइंडिंग करते हैं। अगर वो सिंगल लिगेसी एप्लीकेशन रहता है, जैसे उसी में स्टूडेंट भी बनाया है, उसी के अंदर स्टूडेंट डिटेल भी बनाया है, दोनों एचटीएमएल एक ही जगह है, तो जरूरत नहीं है ये सब करने की। लेकिन एंगुलर में ऐसा नहीं होता है, करेक्ट? एंगुलर में हम एक मॉड्यूलर अप्रोच लेकर के चलते हैं। तो ये बहुत ही डिजाइनिंग, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इसमें डिजाइनिंग समझनी होगी, मतलब कि हम किस बेसिस पे कंपोनेंट बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो पेज का लेआउट बनाते हैं, तो उस लेआउट के समय डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा हेडर में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एक कंपोनेंट होगा, फुटर में जो आएगा वो एक कंपोनेंट होगा, जो लेफ्ट साइड नेविगेशन में आएगा वो एक कंपोनेंट होगा, जो मेन विंडो हमारी होगी उसमें जो आएगा वो एक कंपोनेंट होगा। और जैसे जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे, नेविगेट करेंगे, वैसे वैसे हमारे कंपोनेंट चेंज होते जाएंगे। तो सपोज हमारा एक कंपोनेंट है जिसमें हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक टेक्स्ट बॉक्स में के अंदर स्टूडेंट आईडी डाला, बटन पे क्लिक किया। अब वो डेटाबेस के पीछे कुछ ऑपरेशंस होंगे और वो डेटा फेच करके लेकर के आएगा। और सपोज वो हमारा एक दूसरा कंपोनेंट है, तो दूसरे कंपोनेंट में हमको डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि डेटा तो आया है कंपोनेंट के, स्टूडेंट कंपोनेंट के पास, बट वो स्टूडेंट डिटेल में जाएगा कैसे, इसके लिए ये सारी चीजें समझना हमको जरूरी है। थैंक यू सर। क्लियर हो गया ना? समझ में आया ना? यस हाँ, तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम एप्लीकेशन को डिजाइन कैसे किए हैं। बहुत बारी क्या होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना टफ हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे इसको एक ही कंपोनेंट में कर लो। दिस इज नॉट द राइट वे। करेक्ट? राइट वे क्या है कि आप एक कंपोनेंट पहले डिजाइन करो, उसके अंदर कौन सी फील्ड्स चाहिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई दूसरी वैल्यू है जो उस कंपोनेंट में नहीं है, तो आपको यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दो उसको। जैसे हमने पहले क्या किया था, अब हमने अपना ऐप कंपोनेंट बनाया, तो एक्चुअल में जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, तो ऐप कंपोनेंट के हमारा हमारा एक लॉगिन पेज आएगा, फिर लॉगिन पेज के पास ये आ गया, फिर एक लैंडिंग पेज आएगा। जब उस पर आप क्लिक करोगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट वाली इन्फॉर्मेशन आएगी, जो डेटा वहां पे नहीं है। तो वो डेटा वहां पे कैसे जाएगा? जब आप उसको पास करोगे। और पास करने का भी हम तरीका ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स से चाइल्ड में कैसे पास करते हैं, और बहुत सारी चीजें पास होती हैं। अभी हम केवल एक सिंपल स्ट्रिंग पास करके चेक कर रहे हैं। तो इतना क्लियर है हम लोग को? यस सर। क्लियर ना? शैलेश आपको क्लियर है? बलेंद्र आप बताइए। सर इसके पिछले बार हम लोग जो स्टूडेंट ऐप स्टूडेंट इन्फो नाम का कंपोनेंट बनाए थे, उसको भी तो हम लोग इसी तरह उसको क्या किए थे सर? उसको भी तो आप किए, तो इसमें जाके हम लोग ऐप हाँ, लेकिन HTML में उसमें स्टूडेंट कंपोनेंट भी में तो जितना आया था। डेटा आ रहा था ना, वो सब स्टूडेंट के पास ही था, पेरेंट से कोई डेटा नहीं आ रहा था। करेक्ट? अभी हम सीख रहे हैं कि यस। हाउ यू आर गोइंग टू सेंड द डेटा फ्रॉम पेरेंट। ओपन योर स्टूडेंट इन्फो एचटीएमएल, ओपन योर स्टूडेंट इन्फो। उसके अंदर जो इतना डेटा है ना, सारा वहीं पे मैंने रखा हुआ था, पेरेंट से नहीं आता। अभी आप पेरेंट से बैनर का डेटा लेकर के आ रहे हो, करेक्ट? देखो हाँ यहाँ सर अब समझ में आया कि इसके अंदर देखो जितना शैलेश शैलेश आपने लिखा है, और आप इतनी काम चोरी कर रहे हैं कि इसको अभी भी प्रॉपर नेम नहीं दिया है आपने। इसका मतलब आप लोग हमारे वीडियोस देख नहीं रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए भाई, उसको उसको देख करके उसमें से वैसा ही बनाइए जैसा हमने बनाया है। ठीक है? स्क्रीन ओके को सर। जगह पॉज करके वैसे पूरा वैल्यू दिखा सकते हैं। कितना गंदा लग रहा है, यूआई है, शैलेश शैलेश शैलेश।
सिद्धार्थ लोग तुम्हारे साथ हैं, सबका नाम यहाँ पे राइट करो, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो पेरेंट डेटा है ये कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम भी ऐसा रखा है पेरेंट डेटा, ताकि आप समझ जाओ कि पेरेंट का डेटा है। अल्टीमेट इसको यस पेरेंट डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो कोई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या फिर स्टूडेंट बैनर इस तरीके का कुछ रखेंगे, स्टूडेंट लोगो ऐसा कुछ रहेगा, स्टूडेंट इमेज, पता चला स्टूडेंट की इमेज किसी दूसरे कंपोनेंट से आ रही है, वो इस वाले कंपोनेंट में कैसे आएगी, तो @input डिक्लेयर करेंगे और फिर आएगी। बलेंद्र आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। बलेंद्र, आई वांट टू सी, यू आर वेरी साइलेंट, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट यू आर डूइंग। Show me your videos, Balendra. Switch on your camera also, share your screen as well. Now you understand how you can bind it, correct? So is this clear, everybody? How to bind from a parent control to a child control? How you can do the binding in Angular components? यस सर। Yes, sir. चलिए ऐसे ऐसे एक चीज समझनी है, अदरवाइज आप एंगुलर में कंफ्यूज हो जाएंगे। हु इज शेयरिंग द स्क्रीन? बलेंद्र सर। बलेंद्र, मतलब कुछ मौन व्रत है क्या बलेंद्र का? या अमन ने बोला है कि चुप रहना है, बोलना नहीं है? बलेंद्र का सर ऑडियो खराब है लीड का, मोबाइल से कनेक्ट करा के उससे बोलो बलेंद्र। मोबाइल से कनेक्ट कर करके बोलो और यहाँ से स्क्रीन शेयर करो। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे शेयर करते यस हैं सर। पेरेंट्स से चाइल्ड में। संस्कृति, आप आपकी मशीन पे भी चल रहा है? कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन, आई वांट टू सी। बलिंद्र आपका मैंने देख लिया, जस्ट शो मी, आई वांट टू सी संस्कृति मशीन। This is very professional, very nice. Name, course, brand, very good. But you are not binding it. Okay, this is your app component. Okay, so everything you have written inside app component only, correct? No, लिखा है मैंने इसमें भी। और फैकल्टी में लिखा है आपने? ओके, ये पब्लिक बैनर में ऐसे क्यों आ रहा है भाई? ये आपका रेड क्यों दिखा रहा है? मतलब क्योंकि आपने इसको एनोटेट नहीं किया है, करेक्ट? ये तो पेरेंट ही है ना आपका। इक्वल नहीं लगाए हैं सर इसमें। हाँ, इक्वल रहेगा। कंट्रोल प्लस यस, कंट्रोल एस सेव पेरेंट डाटा। यहाँ भी एरर आ रही है। वो एनी का ए कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। सर इनपुट ऊपर है, एक साथ रहेगा ना पूरे? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो एनजी ऑन इनिट में नहीं लिखना है, उसको कट कर लीजिए। लाइन नंबर अच्छा 14 हाँ 15 को सर, सेलेक्ट करके कट करिए। एक्सपोर्ट क्लास के नीचे सर कंस्ट्रक्टर भी है अभी उसके ऊपर। लेकिन एनजी ऑन इनिट उसमें रखना है, एनजी ऑन इनिट को हटाना नहीं है। यस सर। कंट्रोल जेड करिए, उस 14 और 15 लाइन को कट कर लीजिए, सेलेक्ट करिए लाइन नंबर 14 और 15, कट इट पेस्ट इट आफ्टर 16, लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 14 और 15 को कट करिए। कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड, संस्कृति कंट्रोल जेड। हाँ, 14 और 15 लाइन को सेलेक्ट करके कट करिए, वहां से हटाइए 14 और 15 को। एडिट इनपुट और पब्लिक, हाँ ये उसको जो उसको हाँ हाँ कट करिए, उसको कट करिए। हाँ, अब 15 के बाद से एंटर करिए, 15 के बाद आइए। हाँ 15 हाँ एंटर करिए, एंटर, हाँ पेस्ट करिए।
नहीं, पेस्ट कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, पेस्ट कर दो। सर मैंने तो कट कर दिया था। हाँ तो पेस्ट हो जाएगा ना, कट किया है तो भी पेस्ट हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि कॉपी हो तो ही पेस्ट हो, कट किया हुआ भी पेस्ट होता यस है। सर। अरे दादा, ओहो। नहीं हो रहा सर, हाँ हाँ, नहीं हो रहा है। सब हो रहा है, होता है। कंट्रोल भी करिए आप, कंट्रोल भी करिए, कंट्रोल भी। वो वाला आ रहा था सर, पिछला जो कॉपी करके रखे। सर पहले का कॉपी। ये कंट्रोल प्लस कट हुआ ही नहीं है सर ये। अच्छा, कोई बात नहीं, शैलेश को बड़ी मजा आती है कोई गड़बड़ करता है तो। उसको एक क्या लाइन में भी लिख सर? सकते हैं, उसको ऊपर भी लिख सकते हैं। वो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस को सेव करिए, वहां पे आपने सेव नहीं किया ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। वो लास्ट में, ऐप लास्ट के कंपोनेंट बाद डॉट टीएस को सेव करिए। बैनर का बी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ये सब चीजें सिखाई जा चुकी हैं, नेमिंग कन्वेंशन कैसे लेना है। बैनर, ओके, गो देयर। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले पहले मैं आई चेक, देन यू नीड टू रन। First of all, what I have told, you want to transfer the data from your parent component to your child component. So first you यस। need to get the data in your parent component. Tell me how you are getting the data in parent component. You are getting the data in parent component through app.component.ts और file. टीएस फाइल। There you have declared a public banner. Okay. Now you will go to the HTML of that parent. Go to HTML of your parent. Okay, app component. Okay, there what I have told, this square bracket, what is this? This is the property binding. So here, प्रॉपर्टीज बाइंडिंग्स। so here you have bind your parent data to banner, correct? यस सर। Now what you have to do, this parent data, who is going to consume this parent data? Your faculty details. So go to your faculty details component. Okay, open your TS file. First you need to open your TS file, correct? There you will do the logic part. यस सर। So this is your TS file. The same name you have to use here at the rate input and parent data, correct? So Yes, and sir. after that you have this data in your class file. Then it's very simple. What you will do, you will go to the presentation part of this. Where is your presentation? In HTML. So the presentation is your view template. So from your class file, from your class, you are going to view template, and there you are using parent data perfectly. So here you will get your banner. Okay. So now save it and run it. I think Balendra has left. एनजी सर्व लिखना है या फिर एनपीएम स्टार्ट लिखना है? एनपीएम स्टार्ट लिखेंगे तो एनजी सर्व के करस्पॉन्डिंग और भी जो आपने चेंज किया होगा वो ऑटोमेटिक चलेगा। डिलीट कर दीजिए, सारे सारे किल कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। टर्मिनल ओपन है ना, एक टर्मिनल तो ओपन रहने दीजिए, रन इट। इफ यू वांट यू कैन राइट एनपीएम स्टार्ट। स्टार्ट। मतलब संस्कृति ग्राउंड वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रही है, एक बार भी एप्लीकेशन खुद से रन आप लोग नहीं कर रही है। सोते वक्त आप लोग वीडियोस लगा के देखा करेंगे ना, तो आप लोग को दिमाग में एकदम परमानेंट चला चला जाएगा। सब चीज मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है। लग रहा बलिंदर को नींद आ गया सर। हो सकता है भाई।
क्या हुआ, इतना स्लो क्यों है? नहीं नहीं, अभी अभी टाइम लग रहा है संस्कृति, वेट, टेकिंग सम टाइम। कभी कभी एनजी सर टाइम लगाता है, वेट फॉर दैट, ओके। लग रहा है सर इसको भी नींद आ गया। नहीं, इसके बाद से क्लास नहीं करेंगे, इसके बाद से अभी मुझे हालांकि चाइल्ड वाला भी बताना था, बट अभी सब लोग हैं नहीं, तो उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बलेंद्र का सर डिस्कनेक्ट हो गया बोल रहा है, पता नहीं क्यों। डिलीट करके फिर से करो। नहीं 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 नहीं, वो कभी वो होता है, थोड़ी मशीन स्लो भी है इन लोग की। अब जैसे जैसे और भी कंपोनेंट्स बनते जाएंगे। इसका मतलब सर मेरा फास्ट हो गया। हाँ, तुम्हारा फास्ट हो गया। अरे स्विच ऑन करो अपना वीडियो तो। चले, क्या वीडियो सर? वीडियो कैमरा ऑन करो अपना। ओके सर। सर सोए नहीं है? हाँ, अभी जनरेट हो रहा है, नाउ नाउ वर्किंग फॉर संस्कृति। ओ वाह, ओ माय गॉड, लुकिंग सो फ्रेश। अच्छा, ये वीडियो के फ्रंट पे जाएगा ना, फोटो में। Compiled successfully. So it will not, will it open also? It has opened. एज में होगा ओपन ना सर? मेरे में एज में होता है। जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ओपन हो जाएगा। आप ब्राउजर ओपन करिए संस्कृति, ये हो गया सक्सेसफुल। ये ब्राउजर ओपन है, जस्ट शेयर योर ब्राउजर, शेयर योर स्क्रीन फॉर ब्राउजर। दो बार क्रोम खुल गया लग रहा है। लैपटॉप को अपने कुछ करिए, संस्कृति इज वेरी स्लो। बलेंद्र है ज्वाइन। एक क्रोम को ऑफ कर दो संस्कृति, दो क्रोम ओपन हुए हैं। एक ही तो है। दिख रहा है दो।
इतना टाइम तो खुद से प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता होगा अगर इतना टाइम लगेगा तो। मतलब अगर मैं नहीं करवाता तो पता नहीं करती भी नहीं। ओ वाह, बैनर यार मेंटरशिप करेक्ट आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए ताकि अच्छे से दिखे ऊपर। करेक्ट, तो हमको पता चल गया ना कि अगर हमको पेरेंट से चाइल्ड में डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे। इसी तरीके से आप लोग 3-4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके आप लोग के लिए होमवर्क होगा और इसको आप लोग करिए। यस सर। करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच वन इज पेरेंट विच वन इज चाइल्ड। जो भी पेरेंट है उसमें प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करिए, हार्ड कोड करिए फॉर नाउ, अदरवाइज बाद में वो डेटाबेस से आएगा। जो भी आपने प्रॉपर्टी बनाया है अगर आप उसको चाइल्ड में बाइंड करना चाहते हैं तो चाइल्ड वाले पेरेंट वाले कंपोनेंट पे जाइए जहाँ पे चाइल्ड यूज कर रखा है हमने, वहां पे उसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, मतलब आपकी एक कस्टम प्रॉपर्टी आप बाइंड कर रहे हैं जिसका आपने नाम क्या रखा है, पेरेंट डेटा या फिर XYZ कोई भी डेटा हो सकता है, स्टूडेंट डेटा हो सकता है। पेरेंट डेटा सर। हाँ पेरेंट डेटा है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि पेरेंट डेटा रखो, उसको आप कुछ भी रख सकते हो, हम चूंकि समझने के लिए कुछ लिखे भी हैं रख सकते, कि ये पेरेंट से अपना नाम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिखेंगे सर हम। अपना नाम लिख सकते हैं। तो पेरेंट डेटा रखिए उसको, और फिर जो भी आपने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर किया उसको @input से चाइल्ड के अंदर उसको कॉल कर लीजिए। जब @input से चाइल्ड के अंदर वो कॉल हो जाएगा फिर आप उसको इंटरपोलेशन के थ्रू कहीं पे भी बाइंड कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हालांकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं चाइल्ड वाला भी बताना चाहता था, तो नेक्स्ट क्लास में चाइल्ड वाला बताएंगे, ठीक है, कि चाइल्ड कैसे तो डेटा ऐसे भेजेगा। सर वाली कुछ वेरिएबल ही आएंगे, फंक्शन आ सकते हैं सर? हाँ फंक्शन आएगा, बहुत कुछ आएगा, पूरा का पूरा डेटा आएगा। तो जो चाइल्ड भेजेगा ना, तो उसमें मैं एक बटन क्लिक पे दिखाऊंगा आपको कि एक बटन क्लिक कर रहे हैं तो कैसे डेटा जा रहा है। अभी तो हमने कोई इवेंट नहीं किया है ना, जब चाइल्ड वाले से करेंगे ना तो किसी यस इवेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, सो वी विल हैंग अप एंड गुड नाइट। ओके, नेक्स्ट गुड टाइम से नाइट आप लोग सर। ट्राई सर। करिएगा कि जो टाइम है उस शार्प उसी पे ज्वाइन करें और सारे लोग ज्वाइन करें, यस सर। अदरवाइज एक बंदा भी रहेगा तो मैं जितना टारगेट किया हूँ उतना खत्म करूंगा। ओके, ओके सर। ओके सर। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट सर। टेक बाय केयर बाय सर, बाय गुड बलिंग, नाइट। बाय शैलेश, बाय संस्कृति। बाय सर।